Good evening, sir. Good evening, Bachcha Party. Very good evening. So, start working out problems. Today we will complete the even odd function and periodic function as well. So, target of today is even, odd, and periodic. So, how do you do this question? And those who have done this question, just let me know so that I can parallelly write some question which you keep on doing. The question says a function f defined from real to real satisfying the condition f of x plus y plus f of x minus y equals 2 times fx into fy for all xy belongs to real. Then prove that the function fx is identically zero function if f0 is 0 and even function if f0 is 1. Okay, let me check. Subjective question in today's test. Okay. Yes sir, अलग से दिया हुआ था सर, आंसर ही नहीं दे रखे थे, ABC में दे रखे थे इंटीजर के आंसर. हाँ Yes, sir. ABs मतलब इंटीजर में C लिखा हुआ था, D लिखा हुआ था, ऐसे आंसर थे उसमें. Yes, sir. थे उसमें सारे 5 के 5 में थे. अच्छा ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ क्लास के बाद. f of x plus y plus f of x minus y is 2fx fy. And this is true for all xy belongs to real. Means this is a functional relation, functional equation given. This is a given functional equation. And Yes, some function is satisfying this equation. You have to show that it is a identically zero function or even function. Even if it is identically zero function, it is an even function. So it can be said that prove that fx is even function. So how do you do it? सर पहले वाले पार्ट के लिए तो y को 0 डाल दिया, दूसरे वाले के लिए x को. पहले वाले पार्ट के लिए y को 0 डाल दिया. So इन्होंने बोला कि put y equal to 0, then you will get f of x plus f of x is equal to 2 times f of x into f of 0. So you've got 2fx is equal to 2fx into f0. And what is f0? f0 is given as 0. And therefore fx is 0. For all x belongs to real. Because actually this was true for all x belongs to real. This was true for all xy belongs to real. That means you can put any value in place of y. So you put y equal to 0. And this is true for all x belongs to real. So this is true for all x belongs to real. So this is true for all x belongs to real. When something is 0 for all x belongs to real, that means it is an Even function. identically zero function. Even तो होगा ही होगा, but ये identically zero function हो गया. तो पहला पार्ट तो यही था, identically zero function प्रूफ करना था अगर f0 की वैल्यू 0 है तो. बट अगर f0 की वैल्यू 1 है तो यहां से कुछ नहीं डिड्यूस होगा, 2fx इक्वल टू 2fx ही रह जाएगा. तो f0 1 पर क्या होगा? तो केस 2, if f0 is 1, then you have to go other way around. इवन प्रूफ करना है, मतलब f of minus x और f of x को कनेक्ट करना है कि उनके बीच क्या रिलेशन है. तो आप इसी फंक्शनल इक्वेशन से स्टार्ट करिए, लेकिन अब y के बजाय x को 0 पुट कर दीजिए. तो अगर मैं बोलता हूं कि लेट अस पुट x एज 0 एंड y को y भी रहने दे सकते हो या y को x डाल दो, तो क्या आ जाएगा?
इक्वेशन क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ x, और y को अपने y को 0 पुट कर देते, f ऑफ 0, अरे x को 0 पुट किया तो ये वाला f0 हो गया और fy fx हो गया, और f0 क्या बोल रहे हैं, now f0 is 1, since f0 is 1, so what do you get, f of x plus f of minus x is equal to 2 times fx, and therefore f of minus x is equal to fx, and this implies fx is an even function. So this was about question number 5. I hope it's okay, simple. Okay, can you guess some function that satisfies this equation? Any function you are known so far which satisfies this kind of relationship? क्या बात है, एकदम चुपचाप हो गए यार। ऐसा कोई फंक्शन नहीं पढ़ा है आपने 11th में 12th में अभी तक जो इस रूल को फॉलो करता हो? याद नहीं आ रहा है ना? cos x plus y plus cos x minus y is equal to 2 cos x cos y. तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे भाई कहाँ चले गए तुम लोग? यस सर। यार Yes, इतना चुपचाप मत बैठो यार, फिर मुझे नींद आने लगेगी। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स फॉलो कर रहा है ना? हाँ, ये अलग बात है कि कॉस एक्स फॉलो कर रहा है तो कॉस 2x भी फॉलो कर रहा है, कॉस 3x भी फॉलो कर रहा है, तो कोसाइन ऑफ समथिंग फॉलो कर रहा है इसको। और भी सोल्यूशन हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक तो आपको दिख ही गया, तो थोड़ा आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए जी। ऐसे मतलब आपको तुरंत बता देना चाहिए, इनफैक्ट पहले ही बोल देना चाहिए सर कॉस एक्स फॉलो कर रहा है इसको। क्विक, जल्दी आंसर करिए। Prove that this is an odd function. So if you observe this function, observe the numerator. What do you find? Numerator is even. This one is odd, and this one is also odd. And odd into odd is even. So numerator is even. और न्यूमरेटर अगर इवन फंक्शन है तो पूरे फंक्शन को ऑड प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना है? डिनोमिनेटर को ऑड प्रूफ करना। न्यूमरेटर इवन है, सो वी नीड टू प्रूफ दैट डिनोमिनेटर, लेट्स से gx, which is equal to 2 times integer part of x plus 5 pi over pi minus 9 is odd function. ये प्रूफ करना आपको। अब आपका मतलब कि वो प्रॉब्लम रिड्यूस होकर के एक दूसरी प्रॉब्लम बन गई, ये वाली, इसको ऑड प्रूफ करना है। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है? दैट इज टू प्रूव दैट g ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल टू नेगेटिव gx। ये प्रूफ करना है। सो आप g ऑफ नेगेटिव x से स्टार्ट करो, g ऑफ नेगेटिव ऑफ x। अब आप शुरू हो जाओ, इसके बाद मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। g ऑफ नेगेटिव, एक्चुअली इसको थोड़ा और अच्छे से देखो तो ये gx में कुछ तो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और सिंपल। gx को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? सर वो 5 बाहर आ। हाँ, x बाई पाई प्लस 5 इंटीजर बाहर आ जाएगा, तो लिख सकते हैं आप 2 टाइम्स इंटीजर x बाई पाई
and plus 10 minus 1. 5 बाहर आया, twice of 5 10, 10 minus 9 is 1. ये फंक्शन है और इसको मुझे ऑड प्रूव करना है. चलिए जी, g minus x is 2 times integer part of minus x upon pi plus 1. अब आगे का काम आपको करना है. आपको मिलते हैं 2 मिनट टाइम. 2 मिनट में आंसर नहीं आया ना तो अच्छी बात नहीं, जल्दी शुरू हो जाइए. आपको इस g ऑफ माइनस एक्स को माइनस gx दिखाना है. 2 मिनट का टाइम है आपके पास में. हो गया सर. हो गया. आर्ग्यूमेंट दो. हो गया तो हो गया तो अभी नहीं, आर्ग्यूमेंट मत दो, अभी आर्ग्यूमेंट मत दो. हो गया तो आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप पहले उसको सॉल्व करो. ओके, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन. क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन ऑफ पाई x बाई 2 if x का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 and x times mod x if x का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 1. You have to identify whether fx is even function, oblique odd function, oblique neither, and fx is periodic or non-periodic. So get it done. सर ये सेकंड वाले के लिए मोड x मोर देन 1 है. हाँ, दोनों के लिए mod x ग्रेटर देन 1 है. इसके लिए mod x लेस देन 1 है, इसके लिए mod x ग्रेटर देन 1 है. mod e. अब बताओ बेटा, ये किसका किसका हो गया? जिंट की प्रॉपर्टी याद है? जिंट ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? जिंट ऑफ माइनस एक्स क्या होता है भाई? तो अगर x, ये डिपेंड करता है कि x क्या है, x इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है. अगर x इंटीजर है, अगर x की वैल्यू इंटीजर है माइनस इंटू गिंट एक्स हो जाएगा फिर. तो माइनस ऑफ जिंट एक्स हो जाएगा. और अगर x इंटीजर नहीं है तो -1 माइनस गिंट एक्स. x इंटीजर है तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस x ही हो जाएगा, क्योंकि जिंट एक्स तो x ही हो जाएगा अगर x इंटीजर है तो. अगर x इंटीजर नहीं है तो हो जाएगा -1 नेगेटिव जिंट एक्स. ये प्रूव कर चुके हैं प्रॉपर्टी भाई, इट्स नोन टू यू. सो इसी बात को यूज करना है. इतना हिंट दे दिया मैंने. आप क्या करोगे इसको? यहां पर x की जगह x बाई पाई है तो 2 केस लोगे. अगर x की वैल्यू x बाई पाई इंटीजर, मतलब x बाई पाई अगर n है, x इक्वल टू n पाई ले लिया मैंने, x इक्वल टू n पाई. उस केस में अगर x n पाई है तो ये चीज क्या हो जाएगी? 2 इंटू एक्स अपॉन पाई n हो जाएगा. माइनस n इंटीजर है तो जिंट हट जाएगा, तो 2n 1 माइनस 2n यू कैन राइट, या माइनस ऑफ 2n माइनस 1 भी लिख सकते हैं. और अगर x n पाई नहीं है, इफ x इज नॉट इक्वल टू n पाई, देन मतलब x इंटीजर, तब x अपॉन पाई की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है. पहले केस में x अपॉन पाई इंटीजर लिया, दूसरे केस में x अपॉन पाई इंटीजर नहीं है. अगर इंटीजर नहीं है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स, बोलो, -1 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x अपॉन पाई प्लस 1. अब जो फाइंडिंग आपकी है उस फाइंडिंग को अगर पूरा देखो तो यहां आ रहा है नेगेटिव ऑफ 2n माइनस 1. किस केस में? जब x n पाई है. और जब x n पाई नहीं है उस केस में आ रहा है -2 प्लस 1 इज -1 एंड
एंड माइनस कॉमन ले लोगे तो 2 टाइम्स इंटीजर पार्ट ऑफ x अपॉन पाई प्लस 1 ये आ रहा है। अब आपको ये बात तो क्लियर दिख रही है कि g ऑफ माइनस एक्स माइनस जी एक्स हो गया, ये माइनस जी एक्स है, ध्यान से देखो। लेकिन कब हुआ? g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स प्रूव तो हुआ, लेकिन ये प्रूव किया गया जब x कोई भी रियल नंबर है एक्सेप्ट n पाई। तो हमें ये देखना भी इंपॉर्टेंट है कि n पाई पर क्या हो रहा है, क्योंकि प्लस पाई पर क्या हो रहा है, माइनस पाई पर क्या हो रहा है, प्लस 2 पाई पर क्या हो रहा है, माइनस 2 पाई पर क्या हो रहा है। अगर पाई और माइनस पाई की वैल्यू एक दूसरे की नेगेटिव हैं, 2 पाई और माइनस 2 पाई की वैल्यू एक दूसरे की नेगेटिव हैं, तो मेरा काम खत्म। तो n पाई पर क्या होगा ये देखने के लिए क्या देखोगे, n पाई पर वैल्यू क्या आ रही, यहां से आ रही, यहां से x की वैल्यू n पाई है तो ये नॉन जीरो आ रहा है, तो कंफर्म है g माइनस एक्स नॉन जीरो आ रहा है, जीरो तो नहीं आ रहा है। ओके, तो मेरा काम क्या है, अब वापस ओरिजिनल फंक्शन पे जाओ। अब क्योंकि हमें gx के बारे में नहीं प्रेडिक्ट करना है, fx के बारे में प्रेडिक्ट करना है। तो लेट्स लुक एट fx नाउ एंड लेट्स से आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। fx को देखो, fx कंडीशन 2 आ रही है। पहला कंडीशन, अगर x n पाई है, अगर x इक्वल टू n पाई है तो क्या आया, नहीं n पाई नहीं है अगर, तो क्या आया, तो आया ये कि tan तो ऑड था, न्यूमरेटर ऑड इंटू ऑड इवन था, और डिनोमिनेटर ऑड है, तो इवन बाई ऑड, इवन बाई ऑड कैसा फंक्शन हुआ ये, ऑड फंक्शन। बट अगर x n पाई हो गया तब क्या होगा वो भी देख लेते हैं। जीरो ही हो जाएगा ना। हाँ, अगर x n पाई हो गया तो ये जीरो हो गया, तो फंक्शन की वैल्यू जीरो हो गई। और जीरो को आप ऑड भी मान सकते हो और इवन भी मान सकते हो, क्योंकि पाई पर वैल्यू जीरो है, माइनस पाई पर भी जीरो है, 2 पाई पर जीरो है, माइनस 2 पाई पर भी जीरो है। मतलब है कि जो x पे वैल्यू आ रही है माइनस एक्स पे उसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका कोई वैल्यूएशन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन एक इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन है, सॉरी, therefore fx is odd function। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये बात जस्टिफाई हो गई। अब ये वाला क्वेश्चन का क्या कहानी है भाई, ये वाला क्वेश्चन पे कुछ सोचा आपने, जिसका जिसका हो गया हो बताओ। ओड और नॉन पीरियोडिक। ऑड और नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक है, सही है। ऑड है, ये बात जज करने के लिए क्या किया तुमने? तो बस दोनों को अलग अलग देख के कर दिया था मैंने तो। मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब होता है 1 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से -1 इंटरवल को मिला के देखना, क्योंकि 1 से इंफिनिटी में पॉजिटिव इनपुट आएगा और माइनस इंफिनिटी से -1 में उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव इनपुट आएगा। तो उसमें फंक्शन मुझे दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, इवन, और साइन पाई एक्स बाई 2 कैसा फंक्शन है, ऑड। ऑड इंटू इवन ऑड है, तो आपने देखा कि ये वाली डेफिनेशन ऑड है। और इसका डोमेन भी देख लो, डोमेन है x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी टू -1 ओपन यूनियन 1 टू इंफिनिटी। क्या डोमेन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ये भी देखना होता है ना। तो ओरिजिन के अबाउट डोमेन सिमेट्रिक है, तो दोनों बातें सेटिस्फाई कर रही हैं कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है और ऑड है, तो ये ऑड हो गई। डोमेन गलत लिख दिया आपने, -1 से 1। अरे ओहो, -1 से 1 वाला लिया मैंने, दूसरे वाले का लिख दिया मैंने। ओके, तो इसका डोमेन आया -1 से 1 और ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए फर्स्ट पार्ट तो ऑड हो गया, दिस इज ओके। अब दूसरे पार्ट पे जाओ, ये x ऑड है और मॉड x इवन है, तो ये भी ऑड है। और इसका डोमेन भी क्या है, अब वही वाला डोमेन आ गया जो अभी पहले मैंने गलती से लिख दिया था। क्या, x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 से इंफिनिटी, डोमेन सिमेट्रिक है। डोमेन सिमेट्रिक है, डेफिनेशन ऑड की बता रहा है, इसका तो ये भी ऑड है। तो पूरा फंक्शन ऑड है। क्या इसका रफली ग्राफ बता सकते हो कैसा होगा? -1 से 1 में तो ग्राफ बता ही सकते हो, -1 से 1 इंटरवल में तो ग्राफ इसका बना ही सकते हो, है ना। उसके बाहर
उसके बाहर बना सकते हैं, नेगेटिव अनसाइन के बाहर। अच्छा, अंदर वाला नहीं बना सकते। ओके, बाहर वाला ही बनाओ, चलो बाहर वाला बना लो, जरा देखें क्या बनाते हैं। बना के देखो, मैं अभी दिखा रहा हूँ कैसा होगा रफली अप्रोक्सीमेटली, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो बाहर वाला क्या है, इस फंक्शन को अगर ध्यान से देखो ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करो इस फंक्शन को, तो ऐसा नजर आएगा f(x) इज इक्वल टू -1 से 1 में ये x² इंटू साइन पाई x बाई 2 है। तो 1 पर वैल्यू क्या आएगी, 1 पे 1 पर वैल्यू आएगी 1 इंटू साइन पाई बाई 2, और -1 पे वैल्यू आएगी -1। तो ये 1,1 है, और यहाँ -1, -1 भी होगा अनडाउटेड। और ऑड फंक्शन है, 0 पर वैल्यू 0 होगी, x² इंटू दिस x² जैसा होगा ऐसा, और नेगेटिव पर उसी का नेगेटिव होगा, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा ऐसा। क्योंकि x² में एक साइन पाई x बाई 2, साइन पाई x बाई 2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 से 1 के बीच में, 1 पर तो x² ही हो जाएगा, ये 0 से 1 के बीच में ये फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, x² भी फ्रैक्शन है तो और छोटी, फिर थोड़ा और बेंड हो जाएगा, x² के और नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा ऐसा। और इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद यहां पर देखो x इंटू मॉड x, x इंटू मॉड x क्या होता है जी, अगर x की वैल्यू -1 से लेस है तो ये क्या हो जाएगा बताओ, मॉड x इज -x, -x² हो जाएगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो अगर मैं x² का ग्राफ ड्रॉ करूं वो कैसा होगा, रादर मैं बोलूं कि यही वाला x² है, एक सेकंड के लिए मेरी बात समझो, मान लो यही x² है ऐसे, और इधर भी ऐसे ही होगा, इसी का मिरर इमेज होगा ऐसे। अब दिखाते हैं कि जो पहले वाला फंक्शन था वो कैसा होगा, वो थोड़ा इससे और नीचे की तरफ होगा ऐसा, ऐसे कुछ, ये 1,1 पे जाके मिलेगा, लेकिन उसके बाद की कहानी थोड़ी डिफरेंट होगी, ऐसे थोड़ा बेंड लेकर के स्टार्ट होगा ऐसे। तो यहाँ पर एक टर्न आएगा इसमें, अब ये सब हटा दो ऐसे, सो दिस विल लुक लाइक सो, ऐसा कुछ। और इधर में क्या होगा, -1 से 1 में तो ये यही वाला कर्व रहेगा, तो यहाँ तक ऐसे होगा, और यहाँ ये हटा दो, ये x² तो राइट साइड में था ना, अब इधर कैसा हो जाएगा, तो -x², ये इसी के नीचे से होकर के और ऐसा ऐसा ऐसा, तो यहाँ पर एक फिर से टर्न आएगा और इस तरह का ग्राफ होगा, ये ऑड फंक्शन होगा। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और पीरियाडिक तो वैसे नहीं, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, पीरियाडिक रेपिटेशन का कोई सवाल नहीं होता है। जल्दी आंसर करिए, क्विक। Set up values of a for which the function -10 to 10 to real number defined by this is an even function. एंड जिसका हो जाए उसके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, वो ट्राई करेंगे, हो जाए तो, ऐसे नहीं कि बीच में ही आप उस क्वेश्चन को करने लग पड़ो, पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा फील होगा। x, y, z आर रियल नंबर्स satisfying the equation x² plus √3 times xy
plus y square equal to 25 and y square plus z square equal to 9 and x square plus z square plus xz equal to 16. Then find the value of xy plus 2yz plus root 3xz. ठीक है, ये आपको करके बताना है। सेवेंथ क्वेश्चन किसका किसका हो गया? साकेत का हो गया 100 to infinity। ओके, वैसे भी देखो ऑब्जर्वेशन ये है कि ये तो इवन है और ये इवन है और ये इवन है, तो एक ही टर्म है जो इवन नहीं दिख रहा है, ये वाला। बोल रहे हैं ये फंक्शन इवन होना चाहिए। इवन फंक्शंस का समेशन इवन आता है, ये हमें पता है, लेकिन इवन में ऑड ऐड करने पर वो नाइदर इवन नॉर हो जाता है। तो ये फंक्शन इवन तभी होगा जब ये 0 हो जाए हर एक्स के लिए। फॉर एवरी एक्स दिस मस्ट बी 0, क्योंकि तब एक्स वाला टर्म वैनिश कर जाएगा। अब ये 0 कब होगा जी? जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? -10 से 10। अगर x -10 से 10 है तो एक्स स्क्वायर कहाँ लाई करना चाहिए? 0 से 100 होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 से 100 है और ये रेशियो 0 होना चाहिए। तो a की वैल्यू अगर 100 से कम हुई तब तो ये 0 नहीं होगा, तब तो जिंट की वैल्यू 1 हो जाएगी या 2 भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? a की वैल्यू ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए। इक्वल टू 100 भी नहीं चलेगा, क्योंकि इक्वल टू 100 पे x इक्वल टू 10 या -10 पुट करने पर ये जिंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और उस केस में ये x वाला टर्म रह जाएगा एक्सप्रेशन में। ठीक है, तब वो इवन नहीं बोल पाएंगे उसको। तो रेंज आ गई a 100 to infinity। अदरवाइज सही तरीका इसको करने का ये भी है कि f of -x लिखो तो क्या लिखोगे आप? f of -x इज इक्वल टू, इवन होने के लिए f of -x fx होना चाहिए, तो आएगा 1 प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ x स्क्वायर बाई a, क्योंकि x को -x करने पे इसमें तो चेंज होगा नहीं, इंटू -x प्लस -x का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस -x का 4 इज x4 इज इक्वल टू fx, मतलब 1 प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ x स्क्वायर बाई a इंटू x प्लस x स्क्वायर प्लस x4। दिस मस्ट होल्ड गुड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। Therefore x square x4 x square x4 and 1 gets cancelled. Therefore 2 times integer part of x square plus a times x 0 होना चाहिए। बात वही आ गई ना, जिंट ऑफ x स्क्वायर प्लस a टाइम्स x 0 होना चाहिए, और ये बात x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि कुछ x के लिए ट्रू होने का मतलब x इक्वल टू 0 भी एक सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन फॉर एवरी x दिस मस्ट होल्ड गुड। ये तभी हो सकता है जब ये जिंट वाला पार्ट 0 हो जाए, तो जिंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू 0 हो जाए। देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू 0 से 1 लाई करनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, नहीं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -10 to 10 बोलना था मेरे को, क्योंकि कंडीशन में -10 से 10 ही पूछा जा रहा है।
तो यहां से क्लियर दिख रहा है क्या कि a पॉजिटिव हो जाए एंड इधर वाली इनइक्वालिटी पे जाओ तो a की a इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -10 to 10, तो a एक्स स्क्वायर की मैक्स वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, मतलब a ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। तो ये एनालिसिस से भी आपको मिल गया स्ट्रेट अवे। So this was question number 7. Clear to all? So can we move to next question? Yes. So whenever you get time, ये वाला क्वेश्चन को करते रहना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना इसको जरूर। इसमें लिखेंगे इवन एंड ऑड एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन। इवन एंड ऑड एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन मतलब अगर कोई फंक्शन इवन है अपनी नेचुरल डोमेन में तो है, ऑड है तो है, लेकिन मान लो कोई फंक्शन इवन नहीं है, या ऐसा बोलो कि उसका फंक्शन, वो फंक्शन जो है वो ओरिजिन के एक ही साइड पर डिफाइंड है, उसका डोमेन सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को जिसका डोमेन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है उसको इवन कैसे बनाया जाए या ऑड कैसे बनाया जाए, इसी को बोलते हैं इवन ऑब्लिक ऑड एक्सटेंशन। एक्सटेंडिंग द फंक्शन, extending the function's domain and redefining the function in extended domain so that the function behaves as if it is even, or in other case as if it is odd, then we call this procedure as even oblique odd extension. So first you write down that if fx is a function defined from alpha to beta to real such that alpha and beta are of same sign, then the domain of function can be extended and the function fx can be redefined in the extended domain such that the function finally becomes an even function or an odd function, and this procedure is called even. If the function becomes an even function, we call it even extension. If resulting function becomes an odd function, we call it odd extension. तो इवन एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ? इवन एक्सटेंशन का मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन हमारा मान लो ऐसा है, अब समझो क्या बोला जा रहा है, अल्फा से बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा से बीटा में हमारा फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइंड है, मान लो ऐसा y इक्वल टू fx, और मैं चाहता हूं इस फंक्शन को इवन एक्सटेंड करना, तो पहले मैं डोमेन को रिफ्लेक्ट करूंगा। अल्फा का रिफ्लेक्शन क्या होगा? माइनस अल्फा, और बीटा का रिफ्लेक्शन क्या होगा? माइनस बीटा। तो हमें इस फंक्शन को जो कि अल्फा से बीटा इंटरवल में डिफाइंड था, इस इंटरवल में डिफाइंड था, अब हमें इसको इस नए इंटरवल में भी डिफाइन करना है, लेकिन डेफिनेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि फंक्शन इवन बन जाए। तो हम क्या करेंगे, हम y एक्सिस में इमेज करना चाहते हैं। y एक्सिस में इमेज को जरा ध्यान से सोचो, ये फंक्शन अगर है x और आउटपुट है f ऑफ x, तो इसी का जो माइनस x इनपुट होगा यहां कहीं, माइनस x पर भी आपको वही फंक्शन का आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? माइनस एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, तब ये इवन एक्सटेंशन होगा। और मतलब इसका एफ ऑफ माइनस एक्स है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होना चाहिए? एफ एक्स होना चाहिए। एफ माइनस एक्स क्या होना चाहिए? एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए, ये वाला एफ एक्स, तभी ना इवन एक्सटेंशन होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी? एफ एक्स की जगह एफ माइनस एक्स लिखना पड़ेगा इधर, क्योंकि अगर एफ माइनस एक्स लिखोगे, जैसे ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, ऐसे ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसा ऐसा, इस तरह से एक्सटेंड होना चाहिए हमारा फंक्शन। ये फंक्शन अगर ये वाला एफ एक्स है
तो ये वाला क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, सो दैट इसमें अगर -1 इनपुट दो तो वैल्यू f1 के इक्वल आएगी, इसमें अगर -2 इनपुट दो तो वैल्यू f2 के इक्वल आएगी। मतलब जो वैल्यू 2 पर है वो, जैसे इसमें अगर x के जगह -x डालोगे इस डेफिनेशन में, रिप्लेस x बाय -x, तो क्या आएगा, वही वैल्यू आएगी जो fx की आ रही है। तो जो पॉजिटिव इनपुट पर जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू फिर से आने लगेगी, नेगेटिव इनपुट पर भी वही आएगी। तो डेफिनेशन क्या आएगी, डेफिनेशन ऐसे आई कि fx तुम्हारा डिफाइंड था किस फॉर्म में, अल्फा से बीटा में था। और क्या डेफिनेशन थी, डेफिनेशन थी fx y इज इक्वल टू fx। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला x बिलोंगिंग टू नेगेटिव बीटा से नेगेटिव अल्फा में फंक्शन को रीडिफाइन करो। क्या डेफिनेशन रखी हमने, डेफिनेशन रखी f ऑफ -x। क्यों, सो दैट अल्फा वाली वैल्यू माइनस अल्फा पर वही वैल्यू है जो अल्फा वाली वैल्यू है। अल्फा पर वैल्यू एफ अल्फा है, माइनस अल्फा पर वैल्यू भी एफ अल्फा आनी चाहिए। बीटा पर वैल्यू एफ बीटा है तो माइनस बीटा पर भी वैल्यू, माइनस बीटा पुट करो तो माइनस ऑफ माइनस बीटा प्लस एफ बीटा आना चाहिए। तो जो वैल्यू पॉजिटिव इनपुट पे आ रही वही वैल्यू नेगेटिव इनपुट पे इंश्योर कर दिया मैंने, ये डेफिनेशन है। तो ये वाला तुम्हारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ -x, इसको बोलते हैं इवन एक्सटेंशन। अब ऑड एक्सटेंशन क्या होता है, तो ऑड फंक्शन को समझो। ऑड फंक्शन बोलता है कि एफ ऑफ -x इज इक्वल टू fx का नेगेटिव। ये क्या है, ये वाला f -x इक्वल टू fx है, ये जो अभी आपने ड्रॉ किया f ऑफ -x और fx सेम है। ये बोल रहे हैं नेगेटिव fx है, मतलब इसी वैल्यू का इधर ये वाली वैल्यू को मिरर इमेज कर दो नीचे की तरफ, तो ऑड एक्सटेंशन बन जाएगा। मतलब यहाँ वाली वैल्यू ऐसे माइनस आनी चाहिए और ये वाली वैल्यू यहाँ होनी चाहिए और ये कुछ ऐसा आएगा ऐसा। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑड एक्सटेंशन। मतलब इधर वाला इसको और इसको अगर लोगे, किसको, इसको और इसको कंसीडर करोगे तो ये ऑड एक्सटेंशन हो जाएगा। और अगर आप इन दोनों को कंसीडर करोगे, इसके साथ अगर इसको कंसीडर करोगे तो इवन एक्सटेंशन हो जाएगा। y एक्सिस में सिमेट्री, ओरिजिन में सिमेट्री। तो ऑड एक्सटेंशन लिखना है तो क्या लिखोगे बताओ, ये वाला क्या है, ये तो f -x है, ये वाला क्या है, ये वाला कर्व, तो ये उसी का नेगेटिव है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ -x। तो ऑड एक्सटेंशन, ये इवन एक्सटेंशन लिख दिया ना, अब ऑड एक्सटेंशन लिख दो। ऑड एक्सटेंशन क्या होता है, तो ये होगा y इज इक्वल टू f ऑफ x, अब y इज इक्वल टू f ऑफ x कब है, अल्फा से बीटा में, ये तो दिया हुआ है। अब आप माइनस बीटा से माइनस अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं, जब x की वैल्यू यहां होगी तो fx के जगह f -x लिखो तो इवन एक्सटेंशन हुआ, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑड एक्सटेंशन हो गया। तो पहले इवन एक्सटेंशन करो, फिर जो इवन एक्सटेंशन वाली डेफिनेशन है उसका पूरा नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऑड एक्सटेंशन हो गई, दिस वन। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ रही बात की नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेसिकली। अब मैंने क्या बोला एक बार जस्ट रिकैप करके क्वेश्चन पे चलते हैं स्ट्रेट वे। इवन एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंडिंग द डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ fx एंड डिफाइनिंग सच दैट द फंक्शन ऑब्टेन्ड बिकम्स इवन। अल्फा से बीटा में fx दिया हुआ था तो मैंने इसी का मिरर इमेज लिया, अल्फा बीटा इंटरवल का मिरर इमेज लिया ओरिजिन में, तो माइनस बीटा से माइनस अल्फा में हमारा फंक्शन f ऑफ -x डिफाइन कर दो तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि ये फंक्शन है, इसका इवन एक्सटेंशन लिखो और उसका डायग्राम बनाओ। इसका इवन एक्सटेंशन लिख के बताओ। 0 से 1 में √x है, 1 से 2 में x है, इवन एक्सटेंशन क्या हुआ इसका बताओगे? अभी जो है उसको तो रखना ही रखना है आपको, उसके आगे इसको डिफाइन करना। इट इज रूट ऑफ x when 0 less than x less than 1 and it is x
when 1 less than x less than equal to 2. अब हमें कहां डिफाइन करना है? 0 1 1 2, तो -2 से -1 में डिफाइन करना है और -1 से 0 में डिफाइन करना है, तब जाके ना -1 से 0, 0 से 1, 1 से और -2 से -1 और 1 से 2, पूरा -2 से 2 में डेफिनेशन हो जाएगी। लेकिन ये जो नेगेटिव साइड में आप डिफाइन कर रहे हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कॉरस्पॉन्डिंग इसका और इस इंटरवल का वैल्यू एक दूसरे का नेगेटिव, x की जगह -x करना पड़ेगा। और यहाँ -1 से 0 में क्या करना पड़ेगा बताओ? तो 0 से 1 में क्या था? √x, तो यहाँ हो जाएगा √-x। अब ये मत समझना कि √-x अनडिफाइंड है, √-x डिफाइंड है क्योंकि x की वैल्यू खुद सारी नेगेटिव, इसलिए डिफाइंड है। ग्राफ इसका कैसा नजर आएगा? ग्राफ आसान है। कैसे? 0 से 1 में क्या है बताओ? 0 से 1 में क्या है? √x का ग्राफ y² इक्वल टू x, पैराबोला होता है, y एक्सिस को टच करता हुआ ऐसा, ऐसा पैराबोला हो गया। और 1 से 2 में क्या है? y इक्वल टू x, यही वाली लाइन ऐसे आगे एक्सटेंड करते हैं, तो हम पूरी लाइन ही ड्रॉ कर देते हैं, क्यों टेंशन लिया जाए, है ना? तो यहां से आगे लाइन ड्रॉ कर ऐसे। बात समझ में आई यहां तक कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes. और इसके बाद लेफ्ट में क्या हुआ वो भी देख लो। -1 से 0 में क्या हुआ? तो -1 से 0 में आया √-x। समझते हो क्या है √-x? y इज इक्वल टू √-x अगर लिख रहे हो, इसका मतलब आप y² इज इक्वल टू -x बोल रहे हो। ये लेफ्टवर्ड ओरिएंटेड पैराबोला है। यहाँ -1 पर वैल्यू -1 ही आएगी, वो नहीं 1 आएगी, और ये ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा, इसी का मिरर में जाएगा। बेटा some of you have your microphone on and it is irritated, voice is irritating, please take care. Okay, anyway, so and इसके बाद क्या है बेटा? इसके बाद क्या है? -1 से -∞ में क्या है? तो या -1 से -2 में क्या है? तो -x है, तो y को -x लाइन कैसे होती है? वो लाइन ऐसे ही होती है ना, ऐसे यहां से पास, लेकिन इस लाइन का ये वाला पार्ट लेना है, वो भी ले लो, बात कहें खत्म, फिनिश करो यहां से। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन। इधर में भी 2 तक ही था, तो उसके आगे नहीं एक्सटेंड करना है आपको। तो दिस इज फाइनली द ग्राफ ऑफ फंक्शन। ऐसा ये इवन फंक्शन का ग्राफ हो गया, क्योंकि y एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक है। इवन एक्सटेंशन समझ में आ गया। ऐसे ही ऑड एक्सटेंशन की बात भी क्लियर ही हो चुकी है, तो क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्टली ऑड पे जाते हैं। ऑड एक्सटेंशन बोलता है एक्सटेंडिंग द डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रीडिफाइनिंग इट इन सच अ मैनर दैट न्यू फंक्शन ऑब्टेन्ड बिकम्स एंड बिहेव्स एज एन ऑड फंक्शन। तो इसका है अल्फा से बीटा में fx को एज इट इज रखो, माइनस बीटा से माइनस अल्फा में x की जगह -x करो, तो f ऑफ -x आएगा, फिर पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसका ऑड एक्सटेंशन लिख दो जल्दी से। ऑड एक्सटेंशन ऑफ दिस फंक्शन 0 से 2, 2 से 4 डिफाइंड है, तो नेगेटिव साइड में आपको डिफाइन करना है, मतलब -2 से 0 में क्या होगा ये बताना है आपको। -2 से 0 में क्या होगा, और फिर -4 से -2 में क्या होगा। चलिए स्पीक आउट, ये डेफिनेशन आप जल्दी बता दीजिए। तो किसी भी नेगेटिव इंटरवल की बात कर रहे हो, मतलब अगर इमेज इंटरवल की बात कर रहे हो, तो इंटरवल में क्या है वो देखो। 0 से 2 में x² है, तो -2 से 0 में इसी x² को हमें क्या करना है, x की जगह -x करना है, फिर जो आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है ऑड एक्सटेंशन के लिए। तो भाई x को -x करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x² ही आएगा, तो ये आ जाएगा -x², माइनस से मल्टीप्लाई करके। दिस इज 1।
एंड 2 से 4 में है 4, तो -4 से -2 में क्या है बोल रहे हैं x, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x को -x करोगे तो यही आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, फिर उसका नेगेटिव तो -4। तो वर्चुअली ये हो गया ऑड एक्सटेंशन। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो आपको दिखेगा कि ये ऑड एक्सटेंशन है। कैसे? पहले जो डिजायर्ड ग्राफ है उसको ड्रॉ कर लो जो गिवन था। 0 से 2 में x स्क्वायर है ऐसा, ये 2,4 है और ये 0,0 था, और 2 से 4 में y को 4 लाइन है, मतलब ये लाइन ऐसे यहां तक जा रही है, ये 4,4 तक। अब बोल रहे हैं कि -2 से 0 में ये -x स्क्वायर है। -x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। -2 से यहां तक यही x स्क्वायर का, अगर ये y इक्वल टू x स्क्वायर है और ये y इक्वल टू -x स्क्वायर है, क्योंकि x स्क्वायर इधर भी जाएगा ऐसे, इधर भी होगा ऐसे, इसी का मिरर इमेज है। ठीक है, और इसके बाद क्या बोला, इसके बाद ये -4 है, तो ऐसे ग्राफ हो जाएगा ऐसे। अब आप खुद बताओ ये ऑड है कि नहीं, जल्दी बोलो। देखने से ऑड फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes. तो नाउ यू नो हाउ टू गेट द इवन एंड ऑड एक्सटेंशन ऑफ एनी फंक्शन। सो एक क्वेश्चन करते हैं और स्ट्रेट वे पीरियोडिसिटी पे मूव करते हैं। हाँ जी, ये वाला तो बहुत ही सिंपल है, इसको छोड़ो, ये वाला करो। हालांकि ये भी सिंपल ही है, जल्दी आंसर करो क्विक। इवन एक्सटेंशन के लिए क्या करोगे ये बताओ, और ऑड के लिए क्या करोगे? अभी डिफाइंड है -3 से -1, -1 से 0। आपको 0 से 1 और 1 से 3 डिफाइन करना है। तो 0 से 1 में डेफिनेशन क्या होगी इवन एक्सटेंशन के लिए? जीरो से 1 में क्लोज है सर। 1 ही रहेगा, यस Yes. और 1 से 3 में 2 + x। तो x के -x करोगे 2 + x होगा। तो 0 से 1 ओपन आएगा 2 + x। हाँ 2 + x 2 + x का 1 ओपन आएगा। 2 + x में 1 ओपन आएगा, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ओपन आएगा क्योंकि 1 यहाँ ले चुके। ऐसे ऑड एक्सटेंशन करना होगा तो क्या करेंगे? ये तो इवन एक्सटेंशन हो गया, ऑड एक्सटेंशन में क्या होगा? उस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा। So this is as simple. So this was about even and odd functions, right? Now periodic functions and its properties. 11th में मैं करा चुका हूँ periodicity भी, तो इसलिए थोड़ा सा properties उसका जो basics है उसको थोड़ा जल्दी से करते हैं। Periodic function क्या है? When do you call a function to be periodic? Periodic और oscillatory function में फर्क क्या है? तो ऑसिलेटरी फंक्शन मतलब अगर कोई फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है, कभी उसकी वैल्यू 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर 0 हुई, फिर -1 हुई, फिर -2 हुई, फिर -1 हुई, फिर 0 हुई, फिर 1 हुई, 2 हुई, ऐसे अगर उसकी वैल्यू जो है रिपीट हो रही है तो रिपीटिंग वैल्यू वाले फंक्शन को हम ऑसिलेटरी फंक्शन बोलते हैं। जब उसकी कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो तो ऑसिलेटरी फंक्शन है। लेकिन जब उसका रेपिटेशन का इंटरवल भी फिक्स हो जाता है कि एग्जैक्टली इतने इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, कांस्टेंट इंटरवल से रिपीट हो रही है, तब उसी फंक्शन को हम पीरियोडिक बोलते हैं। तो ऑसिलेटरी फंक्शंस आर नॉट ऑल पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर ऑसिलेटरी। So let's do work out the definition. A function fx from x to y is said to be periodic if it repeats its value after a constant interval for all x belongs to its domain. तो अपनी डोमेन के हर इनपुट के लिए ये बात सही है क्या
कि वो फंक्शन अपनी वैल्यू को एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करता है। अब वो फिक्स्ड इंटरवल क्या है और उसको कैसे मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, तो दैट इज देयर एग्जिस्ट अ रियल फाइनाइट पॉजिटिव कांस्टेंट t, positive constant capital T, such that the value of function repeat f of x plus capital T becomes fx. That means f of x plus 2t also becomes fx, क्योंकि x को फिर से x प्लस टी डालो, ये बात फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन है, तो x को x प्लस टी डालो तो ये x प्लस 2t हो जाएगा, ये f ऑफ x प्लस टी जो कि fx है। फिर ऐसे x को 3t डाल दो, x प्लस 3t तो भी fx आ जाएगा। मतलब है कि f ऑफ x प्लस t पर वैल्यू रिपीट होगी, फिर 2t पर t इंटरवल ऐड करते जाओ तो वैल्यू रिपीट होती रहेगी, x प्लस 3t एंड सो ऑन सो फोर्थ f ऑफ x प्लस nt। कहने का मतलब है कि अगर t इंटरवल पे रिपीटिशन हो रहा है तो 2t इंटरवल पे भी रिपीटिशन मिलेगा, 3t इंटरवल के साथ देखोगे तो भी रिपीटिशन मिलेगा, nt इंटरवल के साथ देखोगे तो भी रिपीटिशन मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? Yes, sir. ग्राफिकली देखो तो कैसा दिखना चाहिए, ग्राफ कैसा दिखेगा, तो मैंने बोला कि ऐसा करते हैं, ये 0 लिखते हैं, यहाँ पर t लिखते हैं, यहाँ पर 2t लिखते हैं, यहाँ पर 3t लिखते हैं एंड 4t लिखते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे लिखते जाते हैं मान लो। और मान लो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है कि 0 से t में ये कुछ ऐसा गया और ऐसा आया और ऐसा आया, ऐसा 0 से t का ग्राफ है। अब क्या होगा, t से 2t में फिर वही कहानी रिपीट होगी, फिर वही कहानी रिपीट होगी, यहां से ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर यही चीज चलती रहेगी, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। और अगर ये चल रहा है, बार बार ये हो रहा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, इसका मतलब हमारा फंक्शन एक पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक फंक्शन है, ऐसा। दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। अब इस पीरियोडिक फंक्शन में इसका पीरियड क्या है, तो बोल रहे हैं कि ये पीरियड है, ये एक लेंथ, जिस लेंथ के कर्व को अगर आप कट कर लो, टी लेंथ, अगर इस लेंथ को कट कर लो, ये ब्लू वाला पोर्शन, और इसी को कट एंड पेस्ट करते जाओ तो पूरा ग्राफ बना सकते हो, तो दिस इज द मिनिमम लेंथ। फिर दूसरी बात मैंने बोली कि आप ऐसा 2 लेंथ को अगर एक कर्व बना दो तो इसको भी तो कट एंड पेस्ट करके पूरा बना सकते हैं, इसलिए 2t भी पीरियड हो सकता है। और ऐसे अगर 3 लेंथ को पीरियड बना दो, 3 पीरियोडिक लेंथ अगर ले लो, ऐसे दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, यहां तक ले लो, तो ये भी तो पीरियड है। तो पीरियड की जहां तक बात है तो पीरियड इसका क्या होगा, तो यहां लिख दो देन t, 2t, 3t, 4t ऑन एंड ऑन एंड t आर पीरियड ऑफ फंक्शन। इनमें से किसी को भी पीरियड बोल सकते हैं, रेपिटेशन का इंटरवल, बट इन सब में t सबसे छोटा है, ये पॉजिटिव है, सबसे छोटा है t, सो द मिनिमम ऑफ दीज, और वो पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखना, ऐसा नहीं को 0 हो जाए मिनिमम या नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव तो अलाउड नहीं है, 0 हो गया तो 0 पीरियड हो नहीं सकता, क्योंकि 0 पीरियड करोगे तो f ऑफ x प्लस 0 इक्वल टू f x, तब तो सारे फंक्शन इसको फॉलो करेंगे, तो 0 पीरियड नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। मिनिमम ऑफ दीज इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड, कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। तो ऑल्दो पीरियड तो ये सारे हैं, लेकिन कौन सा फंडामेंटल पीरियड है, तो t तुम्हारा फंडामेंटल पीरियड है, ये वाला, ये फंडामेंटल पीरियड है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, साइन x की बात करो, साइन x का पीरियड क्या है, कॉस x का पीरियड क्या है,
tan x का पीरियड क्या है, secant x का पीरियड क्या है, cosecant x का पीरियड क्या है, cot x का पीरियड क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड क्या है, जल्द बताओ फटाफट। sin x का पीरियड क्या है, sin x का मिनिमम ग्राफ। अब यहां जब मैं पीरियड बोलूंगा ना तो फंडामेंटल पीरियड है, बाय डिफॉल्ट पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड। 2 पाई cos x का 2 पाई, tan x का पाई, पाई। secant x का 2 पाई, cosecant x का 2 पाई, cot x का पाई, फ्रैक्शनल पार्ट का 1। 1 इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 4 पाई पीरियड नहीं है, 4 पाई भी पीरियड है, 6 पाई भी पीरियड है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 पाई। और एक पीरियोडिक लेंथ क्या है, एक पीरियोडिक लेंथ वो लेंथ होती है, वो मिनिमम लेंथ ऑफ कर्व होता है जिससे पूरा ग्राफ सिर्फ कट एंड पेस्ट करके बनाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड वन पीरियोडिक लेंथ, वन पीरियड जिसको बोल। जैसे अगर मैं साइन एक्स की बात करूं तो एक पीरियड इसका क्या है, ये 2 पाई, और फिर यही वाला ग्राफ रिपीट होगा, यही वाला ग्राफ फिर से ड्रॉ कर दिया ऐसा, और यही वाला ग्राफ फिर से ड्रॉ कर दिया इधर, and you keep on repeating this interval, 2 pi interval. So what is minimum length of curve which is needed to create the graph only by cutting and pasting? So 1 period is that length. So fundamental period का मतलब minimum length हो गई। डेफिनेशन समझ में आ गई। अब बात आती है कि हम टेस्ट कैसे करेंगे कि कोई फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं, हाउ डू टेस्ट एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। सो राइट डाउन टेस्ट ऑफ पीरियोडिसिटी, टेस्ट ऑफ पीरियोडिसिटी। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, हम कैसे टेस्ट करें। अब टेस्ट के लिए यही यूज करेंगे, ये देखो ये, और पीरियड निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम टेस्ट कर रहे हैं साइन एक्स के लिए, तो हम कैसे करेंगे, हम मान लेंगे लेट साइन एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टी, दैट मीन्स एफ एक्स तुम्हारा साइन एक्स से, ध्यान देना, और पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन बोलती है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स होना चाहिए। तो हमने लिखा साइन ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू साइन एक्स होना चाहिए। अगर मेरे को कोई बोलेगा कि पीरियड बताओ, है ना, ये बात हर एक्स के लिए होनी चाहिए डोमेन में, समझ रहे मेरी बात को। तो अब यहां मैं जो बता रहा हूं बड़ा ट्रिकी चीज है और सिंपल सी चीज है, एक बार पकड़ो फट से फटाफट हो जाएगा। टू फाइंड पीरियड, अगर ये दिया हुआ कि पीरियोडिक है और हमें सिर्फ पीरियड बताना है, टू फाइंड पीरियड, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक्स को 0 पुट कर दिया, मैंने एक्स को 0 पुट कर दिया तो आ गया साइन टी इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू आ गई n पाई, तो इसका पीरियड n पाई है। और टी मिनिमम क्या होगा, तो टी मिनिमम जब n मिनिमम हो जाए, और n मिनिमम है लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, तो n मिनिमम क्या होगा 1, तो पाई 1 या 2, साइन टी 0, बोलो। 1 भी आ जाएगा, जो आपने तो लिखा उसके हिसाब से तो 1 भी जानी। इसके हिसाब से तो 1 आ गया, लेकिन 1 तो होना नहीं चाहिए, पाई तो पीरियड है नहीं इसका। इसके बाद फिर वो पॉजिटिव में जानी चाहिए ना वैल्यू, हाँ पॉजिटिव में जानी चाहिए ना। इसके बाद हम जैसे एक्स को इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा, हाँ, तो अगर साइन एक्स प्लस पाई में हम एक्स को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो साइन नेगेटिव में चला जाएगा। हाँ, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पीरियड पाई नहीं होगा, क्या होगा, 2 पाई होगा पीरियड। अब 2 पाई लाने के लिए क्या करेंगे ये बताओ, कैसे पीरियड लाएंगे, मतलब
पीरियड फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि पाई पीरियड पर वैल्यू पाई पर रिपीट हो रहा है क्या, पाई इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट हो रही क्या। तो पाई इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, रादर वैल्यू नेगेटिव हो जा रही है। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करो। कैसे, साइन ऑफ x प्लस टी माइनस साइन एक्स जीरो करो। इसके बाद क्या करेंगे, सी डी फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा क्या, साइन सी माइनस साइन डी, 2 sin c minus साइन सी माइनस साइन डी इज 2 sin c minus d by 2 cos c plus d by 2. 2 cos, क्या बोल रहे हो यार, सब कुछ तुम लोग भूल गए हो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 2x प्लस टी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2। तो यही तो बोला था। तुमने एक सेकंड बेटा, एक सेकंड जस्ट फ्लो। हाँ क्या बोला था, यही बोला था सर मैंने, बस साइन वाली टर्म मतलब पहले बोल दिया था। अच्छा ऐसा बोला था, वो मुझे लगा तुम, नहीं साइन ऑफ 2x प्लस टी तो नहीं बोला था तुमने। नहीं सर, sin c minus d by 2 cos c plus d by 2. ओके 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 ठीक है। ओहो पावर कट, एनीवे सो लेट्स कंटिन्यू। तो क्या आया फर्दर, क्या है बोलो जल्दी से, साइन c माइनस डी बाई 2, साइन c माइनस डी बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा,